Namaskar to all. Today we'll be doing for the ninth standard, the first chapter we'll be doing quadrilaterals, which is a nightmare for many of the students. Quadrilaterals was not like this 3 years back. It had more to exercise. It was a big chapter where you have to know a lot concepts and everything, because here in quadrilaterals you are being studying a series of chapters, right? All combined to with that, like lines and angles, triangles, quadrilaterals and everything. So you need to know what is the application of this. Application of quadrilaterals is just knowing the properties. And next year you don't have quadrilaterals, you just have a single chapter of this variant, that is triangle, and that too it is very easy next year. So dear students, let us go to the chapter in detail. We are doing a one short video of this where we will be covering all the aspects of quadrilaterals. So what is a quadrilateral? Anything that has four sides is called as quadrilateral. So you have a rhombus is a quadrilateral, a rectangle is a quadrilateral, a parallelogram is a quadrilateral, and a lot more. So we will be dealing with major parallelogram a lot more. So talking about parallelogram, what do we have to know about parallelogram? एक parallelogram ऐसा होता है, right? इस parallelogram में हमें तो we are having some properties. If you open your NCERT, you will see 7 properties before the first exercise. So एक parallelogram में क्या क्या होगा? Suppose A, B, C, D. So first I'll roughly tell you what is the properties. Opposite sides are equal and they are parallel. Okay. The opposite angles are equal. Opposite angles are equal to each other. So this is how. And there are one more thing, that is diagonals. They bisect each other. So ये सब in detail पढ़ेंगे हम, right, in this chapter. Then we'll go to the question answers. पहले theorem पढ़ेंगे. Theorem के बिना we cannot go to the question answers. So I'll read out a theorem. Please listen to me. A diagonal of a parallelogram divides a triangle into two congruent. Divides the parallelogram into two congruent triangles. तो हम लेंगे एक parallelogram. ये theorem first क्या बोल रहा है? आप खुद से लिखना है A B C D. Okay, A B C D is a parallelogram. सही है, A B C D parallelogram है. तो we will take a diagonal AC. Okay, take diagonal AC. Diagonal AC. Right. To prove क्या है? To prove क्या दिखाना है हमें कि A B C is congruent to triangle ADC. ये दिखाना है. So, dear students, what is the meaning of congruent? Congruent का मतलब क्या है? देखो, जब we take a triangle और मैंने वैसे और एक triangle भी लिया है, और वो triangle should be congruent, मतलब they should be overlapping. मतलब देखो, अगर मेरे एक triangle ये हाथ है और मैंने इस हाथ को इस हाथ से किया, तो दूसरे जगह एक ही हाथ दिखेगा. So that means the two figures are congruent. That is the meaning of congruence. Okay. तो इस साल के लिए congruence, next साल के लिए similarity. Next साल के लिए आप next video में हम दिखाएंगे next channel में. So in triangle लेंगे हम ABC and triangle ABC. तो ये प्रूव करना है तो OE triangle लेना पड़ेगा हमें. दोनों triangle लिया है. अब मुझे पता है AB is equal to BC. ये और ये इक्वल है. ये क्या है? Opposite sides of parallelogram are equal. जैसे ये opposite sides of parallelogram are equal. अभी I know that this angle is equal to this angle. ये Z है, देखो Z. तो ये Z जो formation of Z है, that can be only possible between the two parallel, right? अगर दो बीच में तो ऐसा Z हो रहा है, ऐसा Z हो रहा है, तो अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो Z का प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होगा. याद रखना है. So can I write angle DCA is equal
एंगल BAC, इसको बोलते हैं अल्टरनेट, क्योंकि इंटीरियर है तो इंटीरियर एंगल हो गया, वो हो गया। और एक ढूंढना है, और हम ढूंढेंगे ये वाला। अब we can even tell that this side is equal to this side, correct? We can even tell this side is equal to this side, opposite sides of the parallelogram. Again the AD is equal to BC. Again opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram are equal. So triangle we can tell ABC is congruent to triangle ABC. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम है and you know what happens in parallelogram, a parallelogram can be divided into two congruent triangles. That was the first. Now these two triangles are congruent. Yeah, that's it. So we have to even write it is by SAS. क्यों SAS? दो sides है और एक angle है. Okay, ये था आपका first one. We will just deal with it very fast. So next we will go to the next theorem. What does the next theorem says? In a parallelogram, opposite sides are equal. ये सिंपल है, ये एक पैरेललोग्राम, इसी में मैं बता देता हूँ। देखिए आपको एक कॉपी और पेन लेके ये सब लिखना है, राइट? ये सब लिख के आपको पता होना चाहिए कैसा क्या करना है। So in a parallelogram, they are telling opposite sides are equal and even they are parallel, right? So in a parallelogram, opposite sides are equal. ये है second theorem. तो 7 theorem है, तो आपको याद रखना है 7, right? So 2 are already done. We are going to the third one. So now after this video is done, you should be like, कोई भी पूछा कितना थियरम है, आपको पता होना चाहिए 7 थियरम। 7 थियरम है फर्स्ट हाफ में, दो पार्ट है इसका। ये फर्स्ट हाफ है, सेकंड वी आर डीलिंग विद मिड पॉइंट, वो तो इजी है, ये भी इजी है, इजी करने के लिए है आप। तो ये 2 हो गया, सो वी विल रब इट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आई वॉन्ट यू टू राइट सिंपली, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो और 2-3 बार देखना पड़ेगा। Now सुनो, listen to the theorem. If each pair of the opposite sides of the parallelogram are equal, okay, अगर each pair of opposite sides of a parallelogram are equal, then we tell, no, not a parallelogram, a quadrilateral, कोई भी quadrilateral ले लो। अगर each pair of opposite sides, pair मतलब क्या है भाई? ये और ये और ये मतलब 2 pair मतलब 2। अगर ये ऐसा, ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, ऑपोजिट होना चाहिए, एडजेसेंट नहीं। अगर ये सही ये होता है तो हम वो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ वील अज्यूम, ये इसको कैसे करना है? ये थर्ड है, ABCD इस बार पैरेललोग्राम नहीं है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। अभी ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है कि आपका ABCD जो है इज अ पैरेललोग्राम, हमें प्रूव करना है वो पैरेललोग्राम है करके। तो व्हाट कैन वी डू? वी जस्ट डिवाइड इट। अब हम करेंगे सॉल्यूशंस करेंगे। देखो कैसे करना है, कैसे दिखाना है इसका प्रूफ। देखो ये आ सकता है, कोई भी स्टेट का बोर्ड है या CBSE है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन। We'll take in triangle ABC and triangle ADC। हम लेंगे इन दोनों ट्राइंगल ABC और ADC। तो हमें क्या, whatever we know, you should understand. I'll repeat the theorem. If each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is said to be a parallelogram. It's a theorem 3. ये याद रखना है। तो quadrilateral है, तो इसमें given, what is given over here? देखिए स्टूडेंट्स, we have to prove these two triangles are congruent, right? So पहले ये इनको congruent दिखाना है। कैसा congruent दिखा सकते हैं? ये इसके बारे में इसका बात सुनिए। जो given ABCD is a quadrilateral where opposite pair of opposite sides are equal। तो इसके साथ ही हमें दिया है कि AB इक्वल है DC से और AD इक्वल है BC से। तो मैं लिखता हूँ AB is equal to BC, AD
दोनों क्या है, गिवन है, ये दोनों गिवन है आपके लिए। और आपको पता है ये जो AC है, डायगोनल AC है, वो AC इक्वल है क्योंकि बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी से मैं ये लिख सकता हूँ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। तो ये बोल दिया आपने कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं सिंपलिसिटी में ये भी लिख सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सही है। तो वी विल राइट एंगल BCA इज इक्वल टू BAC और BAC is equal to BCA. This is CP CT. So if ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब दो ट्रायंगल दोनों it is, I said it is between the two parallel lines, so we can tell therefore ABCD is a parallelogram। तो आपको समझ में आया है कैसा करना है इसको you should understand how we describe two triangles, how do we get these two triangles as congruent, कैसे दिखाते हैं हम इसको congruent, और फिर उस congruency से हम उसको कैसा assume, not assumption, from that congruency how do we get a statement that it is a parallelogram। This was a third। तो a quick revision, first वाला क्या था, आप बोलो। first one was that if the opposite sides of the parallelogram, right, opposite the diagonals of the parallelogram, first one was the diagonal of the parallelogram, अगर ये parallelogram में diagonal है, it divides into two congruent triangles। second one है in the parallelogram opposite sides are equal, opposite sides equal है एक parallelogram में। अब third है ये, अगर कोई quadrilateral में opposite sides equal दिया है तो वो parallelogram बन जाता है, सही है। अब हम 3 हो गया है, अभी हमें और 4 करना है। अब ये फोर्थ वाला भी याद रखो, इन अ पैरेललोग्राम, फोर्थ वाला इजी है, कुछ बड़ा ये नहीं है, there is no much thing that has to be required। So the statement says that in a parallelogram opposite sides are equal, so opposite sides in a parallelogram are equal। I'll take a parallelogram ABCD in which I will take two angles and I will show that they are how they are been called so as to equal, right? Let us go। तो मैं एक पैरेललोग्राम लेता हूँ, हम लेंगे ABC। अब थ्योरम क्या बोलता है कि ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट थ्योरम the opposite angles of a parallelogram are equal बोल रहा है। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे पहले। अब इसको 1 और इसको सबको हर एक को अलग अलग सा एक ये देंगे हम। सो इट इज लाइक 1 2 3 4। सो वी नो, हमें पता है, वी नो that ABCD is a parallelogram। तो मुझे पता है कि एंगल 1, जो एंगल 1 है Z में होगा, देखिए इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 2 एंगल 4 जो है विल बी इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर, सही है। अभी इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे और इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। ऐड 1 and 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल, राइट। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो इफ आई नाउ कैन आई राइट एंगल 4। अब एंगल 4 को एंगल 2 के रूप माध्यम से लिख सकते हैं, तो एंगल 4 के जगह मैं लिख दिया एंगल 2, ठीक है। Now angle 3 will remain same, angle 2 can be written as angle 4। तो angle 1 plus 2 क्या है बच्चों, 1 plus 2 क्या है, DCB, DCB, और 3 plus 4 क्या है, BAD, BAD, hence proved, okay। तो उसका मतलब opposite angles are equal, clear।
आई होप इट वॉज वेरी लवली। ये था आपका थियरम थियरम नंबर 4 था ये, नंबर लिखना भूल गया। थियरम नंबर 4 था ये, और हमारे पास 3 बाकी। As I said to you, this is not a 20 minutes quick revision class or anything. This is a full short one, big video where you will be learning A to Z about the quadrilaterals. Now we'll go to the next theorem. That is theorem number 5. Theorem number 5. If in a quadrilateral, अगर एक quadrilateral में parallelogram नहीं है, quadrilateral में each pair of opposite angles are equal, then it's a parallelogram. बोला गया है कि अगर एक quadrilateral में अगर उनको opposite angles same है तो हम कहता है कि उसको parallelogram बोलते हैं, right? So what do we do is we know अब ये A B C D है, तो मैं वापस 2 बार पढ़ेगा, आप नोट करना है या आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, यू कैन नोट इट। इफ इन अ quadrilateral each pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram. If in a quadrilateral each opposite angles are equal, opposite angle दोनों equal है, right, तो उसको हम बोलता है parallelogram. So to prove हमें given है कि A B C D is a quadrilateral, right? A B C D is a quadrilateral and we have to prove है कि A B C D is a parallelogram. हमें दिखाना है कि A B C D एक parallelogram है, तो और given है एंगल A कितना है, एंगल C है, एंगल B कितना है, एंगल B है, ये सब given है। बोला है कि opposite angles are equal of a quadrilateral, opposite angles are equal of a quadrilateral, then it is a parallelogram. अभी क्या करेगा, मुझे पता है in a quadrilateral sum of all interior, अंदर का interior angles is 360. तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 360 होगा, तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होगा 360। लेकिन मुझे पता है AC है, तो एंगल C प्लस BD है, तो D प्लस C प्लस D, इसको गिराएगा कि ऐसे रखेगा, तो एंगल C प्लस एंगल C होगा 2C, 2 एंगल C प्लस D और D 2 एंगल D is equal to 360. So 2 times angle C plus angle D होगा आपका 360, तो angle C plus angle D होगा 2 जाएगा, 2 कैंसिल 180, तो हमें मिलेगा it is equal to 180. Since the angles is in the same side of a transverse, तो मैं बोल सकता हूँ C plus D, कहाँ है C plus D, C और D, ये दोनों मिला के 180 मिल रहा है, तो can we tell that CD is transversal? Two parallel sides AD and BC. तो ये देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये एक ट्रांसवर्स के रूप में है, इसका और इसका, तो 180 हमें ये ढूंढा है फ्रॉम अबव, फ्रॉम हियर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि those two triangles are parallel, so I can tell that AD is parallel to BC, hence ABCD is a parallelogram. Wow, nice, right? It is very easy. I hope you understand what I did, right? It's a matter of sense how to do this and all. Not much head is required to understand this. It's quite easy. See, I'm doing all the theorems is because I believe that you are not well known about quadrilaterals and you are searching quadrilaterals in YouTube only to know the complete picture of quadrilaterals. And if you just study 2-3 questions and go, if the questions are different, then you won't be able to do. You won't be able to capture the concept. So to capture the concept, this is a beautiful channel for you. So this is the 5th, more 2 to go. उसके बाद हम एक 8 क्वेश्चन करेंगे, उसमें 5 होगा इस C का वेरिएंस, फिर उसमें 3 होगा या 3 या 4 होगा आपका पार्ट 2 का. अभी ये सब पार्ट 1 नहीं है. डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी बिग थिंग और समथिंग. इट्स अबाउट टू एंड वेरी स्मूथली.
So next, theorem 6. The diagonals of a parallelogram bisect each other. मैंने बोला था ये स्टार्टिंग में, एक पैरेललोग्राम है, क्लियर पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, कहता है कि इसका जो डायगोनल्स है वो अगर ओ है तो वो बोलता है कि बाइसेक्ट, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये दिखाना है। ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, so again I repeat the diagonals of a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. Okay, ये given है. So to prove क्या है? To prove that diagonals bisect each other. Diagonals bisect करता है each other को. तो कैसे बोलते हैं उसको? तो ऐसा नहीं प्रूव कर सकते हम. So we will prove it by telling that OA is equal to OC, OB is equal to OD. ये दिखाना है टू को. सो हम सोल्यूशन शुरू करेंगे इसका. बहुत इजी है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए. इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल ODC. तो देखिए मैं आई एम टेकिंग दिस टू ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल. समझ में आ रहा है कौन सा ट्राइंगल है? और इसमें मैं शेड करके मैं सोचा था हर एक ट्राइंगल में जब कॉन्ग्रुएंसी दिखाएगा आई विल शेड इट, बट आई बिलीव इन यू. सो इनमें मुझे पता है कि DC इज इक्वल टू AB है, राइट. इसमें DC इज इक्वल टू AB, एक साइड हो गया. और मैं लिख सकता हूँ DOC इज इक्वल टू AOB. ये क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जिसको पता नहीं है, एक से ने पढ़ाया था कि जब ऐसा कुछ होता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है. वैसे हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है बिकॉज देर आर उसका जो ऊपर का जो है वो पैरेलल है. और अल्टरनेट एंगल ले सकते हैं, राइट. ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. सो कैन आई राइट BCA इज इक्वल टू BAC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ना अभी क्या बोलेगा मैं इसको, बाय ASA congruency, triangle OAB is congruent to triangle ODC, right. अब इसका CPCT में मैं बोलेगा OA is equal to, ये जो है, ये जो मैं डाल कर रहा हूँ वो और ये दोनों इक्वल है. OA is equal to OC और जो है ये OB is equal to OD. ये दोनों आएगा CPCT. CPCT का मतलब क्या है? जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है. कभी कभी पार्ट्स बोला है उसको और कुछ नहीं है. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो इक्वल हो सकता है या साइड्स या एंगल्स, राइट. साइड्स या एंगल्स जो भी है, ये ऐसा नहीं कि CPCT में हमेशा साइड्स ही आना चाहिए, एंगल्स भी आ सकते हैं. दे हैव सेड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, पार्ट्स है. So this was your theorem 6 and we'll go for the last theorem of the part 1. Part 2 में तो theorem नहीं है, मिड पॉइंट theorem नहीं है सबसे बड़ा part 2 में. तो 7 में हमने 6 खत्म किया है और एक बाकी है, राइट. तो इसमें ये कहता है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स अ पैरेललोग्राम. इसका उल्टा है, सिर्फ इसको उल्टा कहता है कि अगर एक सपोज अ क्वाड्रिलेटरल है ABCD. समझ में आ रहा है आपको सब कुछ जो भी मैंने पिछले बोला? समझ में आया तो कृपया विदाउट फेल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको पता चलेगा कि अगला वीडियो क्या है. अब अगला 10th में जाएगा, अगला 11th में जाएगा, अगला 12th में जाएगा. सो आई विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग. आई एम हियर, आई विल मेक योर स्टडीज़ वेरी ईजी. सो प्लीज सब्सक्राइब. सो इन दिस वी हैव टू प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल है, उसको पैरेललोग्राम दिखाना है, प्रोवाइडेड दैट इट इज गिवन दैट द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो इसका डायगोनल्स जो है वो लोग ये बाइसेक्ट है. तो गिवन क्या है? गिवन में सब कुछ जो भी गिवन है लिख देते. ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल के दिया है. यहाँ पर बहुत गर्मी है. You know that every video I've said that
uncontrollable hot. So again OA is equal to OC, OD is equal to OB, ये सब given है. To prove क्या करना है हमें कि ABCD is a parallelogram. तो क्वाड्रिलेटरल वाले को पैरेललोग्राम करके दिखाना है हमें. तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे AOD, ये ट्राइंगल, कुछ भी ट्राइंगल ले सकते हैं, इधर मैं चूज कर रहा हूँ AOD और BOC. क्या है देखिए, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC. सही है, इन ट्राइंगल AOD एंड BOC क्या क्या है हमें पता है. OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, फिर पता है OD इज इक्वल टू OB. ये दोनों क्या है, गिवन है. देखो भाई गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है. और we will even tell that an angle is equal, right? What angle? Vertically opposite angles? Yes, we can tell vertically opposite angle. ये दोनों equal है. तो AOD is equal to COB, BO vertically opposite angles. So by S, एक देखो अभी ये कैसे लिखता है S, ये कौन सा, ये साइड है दोनों, तो साइड ये क्या है, साइड, ठीक है, एंगल. तो ऐसे नहीं है, SAS congruency. हम बोलेगा ट्राइंगल हमारा AOD is congruent to triangle COD. I believe that you understood this part. तो हम क्या करेगा अभी, इसका जो CPCT लेगा, राइट, जो CPCT लेगा मैं, तो कैसे लेगा देखिए आप. आई विल राइट, हमें पैरेललोग्राम दिखाना है भाई, तो हम इसका ये और ये इक्वल मिलेगा, Z है, और ये भी इक्वल मिलेगा, ये भी Z है. तो मैं क्या लिखूँगा, ADB इज इक्वल टू CBE, फिर BAC is equal to BCO. So since alternate interior angles, so we can conclude that ABCD is a parallelogram. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ABCD is a parallelogram. How was it? I know it was good. So this is how you have to study the 7. This is how I don't see exam point of view. It is not that important. Everything is not that important, but this all are important. This all are important according to your brain. So because अगर आपको बाद में भविष्य में कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी पूछेगा कि बाय क्वाड्रिलेटरल से दो रूल्स बताओ, so you will be not studying quadrilaterals. This is the last year that you will be studying quadrilaterals. लेकिन बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि quadrilaterals का प्रॉपर्टीज क्या है. तभी उसके लिए you have to know properly the elemental concepts of quadrilateral. Okay, thank God we finished all the 7 theorems. हम जाएंगे क्वेश्चंस में. As I said, there are 8 questions for you, 8 solid questions. So उसका first question में जाएंगे. ये मत सोचो कब भी खत्म करेंगे ये क्वेश्चन. Show that each angle of a rectangle. तो हमारे पास एक rectangle है. हमें दिखाना है कि show that each angles of a rectangle is 90 degree. तो A, B, C. तो आपको ये पता है कि तो हमें A, B, C, D is a rectangle ये दिया है. So in a rectangle, what do you know? One angle will be 90 degrees. So I'll assume A is equal to 90 degree. Right? We know that in a rectangle एक angle 90 degree होता है. तो हम अभी क्या करेंगे उसके माध्यम से we will take these are transfers. This in a quadrilateral, all the angles of property is 180 degree. So here what I will do is, I know कि all angles are जैसे कि मैं बोला 180 है, तो मैं क्या करेगा, ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा. we know
I know Allah, we know that AB is acting like ट्रांसवर्सल टू किसको AD और BC, तो ये ट्रांसवर्स एक दोनों के लिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B, ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी है 180 डिग्री, so I will write it is equal to 180 degree. So now I know angle A is 90 degree plus angle B is 180, तो 90 उधर जाएगा, एंगल B is equal to 90 से 180 से 90 हटाएगा तो 90 आ गया। तो हमें मिल गया B is also 90, right? Then I know that in a parallelogram, opposite sides are equal, so angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. तो angle C भी बनेगा 90 डिग्री और angle D भी बनेगा 90 डिग्री। That was how we have to do this question. ये था question number 1. I know it was easy. We'll go to the question number 2. In question number 2, the diagonals of a parallelogram are equal. If the diagonals of a parallelogram, तो हम एक parallelogram बना देंगे A, B, C, D. If the diagonals of a parallelogram are equal, अगर diagonals अगर equal है so समझिए, तो given में है A, B, C, D is a parallelogram. Also हमें पता है AC is equal to then show that it is a rectangle. ये दिखा रहे हैं हमें it's a rectangle. To prove A, B, C, D is a rectangle. A, B, C is a rectangle. So we will solution करेंगे. Consider triangle. देखो ये triangle और ये वाला triangle. So triangle क्या क्या है ABC and triangle BCB. इन दोनों में क्या है, दोनों के पास BC है, BC is equal to BC जो है कॉमन। तो वो पैरेललोग्राम में तो I can write AB is equal to BC, opposite sides of a parallelogram है। और क्या है, we can tell that these two are done. Then we know what is given to me, AC is equal to BC, वो भी दिया है, तो उसमें से हमें दिखा सकते हैं कि it is congruent. After it is congruent, I will write see, हमें दिया है ना AC is equal to BD, ये given है, so इसमें से we get to know triangle ABC is congruent to triangle BCD. By which rule? ये तीनों साइड है SSS. So by SSS all the sides, all the three sides are D. CPCD में मिलेगा. मैं क्या मैं लिख सकता हूँ ABC is equal to BCD. CPCD में ऐसा लेना. ABC is equal to this thing, right? So we know the angle between the transverse. तो B और C, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये भी ट्रांसवर्स में भी है? नाउ उसमें हो गया, इसका ये इधर तक हो गया हमारा, राइट? अब इससे क्या लेना है देखिए, A और A ट्रांसवर्स ले सकता हूँ मैं. सो कैन आई राइट आपका ABC प्लस BCB इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई ट्रांसवर्सल है? ट्रांसवर्सल क्या है मैंने बता दिया आपको समझना है क्या है ट्रांसवर्सल. लेकिन ये दोनों इक्वल है, तो मैंने इधर CPCD में लिखा है फ्रॉम वन ABC और ABC और DCB दोनों इक्वल है, तो मैं इसको क्या ABC लिख सकता हूँ. ABC is equal to 180 degree. So 2 times ABC is equal to 180 degree. ABC बनेगा 90 degree.
हो गया. So it's a rectangle. So it's a rectangle. सही लिखा हमने. हमें क्या किया, दो ट्राइंगल को चूज किया और दो ट्राइंगल को चूज करने के बाद उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया बाय एसएसएस, राइट. यू नो एसएसएस इज फाइन. उसके बाद सीपीसी लिया, ये दोनों इक्वल है. क्यों इक्वल है अभी आपको समझ में आया होगा क्यों मैंने लिया है. दैट इज इक्वल. सो यू शुड नो व्हाट इज आउटकम, देन यू शुड डू द थिंग. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Will rub this. So yeah, students, even this transverse, किसी किसी को पता नहीं एक्सटीरियर ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर ट्रांसवर्सल भी है. ये तो अंदर है तो इंटीरियर ट्रांसवर्सल बोलता है. So we'll go to, this was the question number 2. Now third question. So this is a set of questions. इतना पढ़ के जाओ, आ जाएगा नंबर, राइट. तो इसको मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, इसका लिंक. कृपया देखिए, आप सॉल्व पढ़ सकता है. सो इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है. अरे एक पैरेललोग्राम है. ऐसा दिया है. एक पैरेललोग्राम है जहाँ पर P and Q are taken on the diagonals. P and Q are taken on the diagonal BD. तो ये डायगोनल में दो पॉइंट लिया है Q और P on the diagonal such that, तो गिवन है A B C is a parallelogram and DP is equal to BQ. तो ये जो DP है, मैं और थोड़ा हार बनाता हूँ. ये दिया है, राइट. ये और ये दिया है. टू प्रूव, फर्स्ट वन है ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQD. तो APD देखो, ये देख ट्राइंगल देख रहा है, और CQD है ये. सही है. अभी इसमें कैसा प्रूव करना है, देखिए. वी नो दैट BQ इज इक्वल टू DP. ये हमारा गिवन है, राइट. और ये पैरेललोग्राम है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ AD इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. और लास्ट में मैं लिखेगा एंगल ADP इज इक्वल टू CBQ. क्यों? अल्टरनेट अगेन इंटीरियर एंगल. तो क्या लगेगा, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQD. परफेक्ट, राइट. नाउ अभी इसमें से ही ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया. सेकेंड वाला क्या दिखाना है, AP is equal to CQ. AP is equal to CQ. तो AP का है, AP ये है और CQ ये है. तो ये दोनों ये जो अभी दिखा है ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी में आता है. So I can tell that AP is equal to CQ just by CP/CT of the above congruency. Perfect. I hope you understood this. It was easy. Next part, इधर लिखा मैं थर्ड वाला क्या दिखाना है, ट्राइंगल AQB. तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ. इसको इसका जरूरत है हमें. AQB हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये ज़रूरत है या ना ज़रूरत है. ज़रूरत नहीं है तो हम ऐसे ही इसको मिटा देंगे. लेट मी assume that I am you and I will go ahead. AQB is equal to triangle CPD. AQB का है, अब ये है देखो, A
क्यू बी, ये वाला है, दिख रहा है, और ये वाला सी, करेक्ट। सो इनमें क्या है, हमें वापस पता है डी पी इज इक्वल टू डी क्यू गिवन है, देखिए बहुत सिंपल है ये, ए बी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका भी अल्टरनेट ले लेंगे, देखो जेड है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है ए बी क्यू इज इक्वल टू सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो बाई एस ए एस, तो बोल रहा हूँ साइड साइड एंगल, तो दो साइड एक एंगल, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी, और हो गया ये वाला। अभी फोर्थ वाला देखा, देखने से वैसा ही के वैसा ही है, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, अब ए क्यू है यहाँ पर, ये ए क्यू देखिए, यही ए क्यू, और ए पी क्या है, सी पी क्या है यहाँ पर है, तो कह रहा है राइट ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, क्योंकि सी पी है अब कॉन्ग्रुएंसी, तो ये तो हो गया। सो नाउ वन मोर इज गिवन, 3 4 हो गया, फिफ्थ वन भी दिया है, फिफ्थ वन ये दिया है कि ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू देख रहे हैं जो अंदर है ना, अंदर का ए पी सी क्यू, सॉरी ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखो जो भी आपका ए सी ए क्यू इज इक्वल सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, और ए पी इज इक्वल टू सी क्यू है यहाँ पर, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, सो तो उसके लिए मैंने बोला था 1 और 2 ले लिया हम इसको, सो ऐसे लिख सकता फ्रॉम 1 एंड 2 ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें दिखाना है एपीसीक्यू से पैरेललोग्राम, हमने ऑलरेडी सीपीसीडी में ये सब जो रिक्वायर्ड था उसको कर दिया है, तो मुझे ये बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम, बस ये सब 4 मार्क 5 मार्क के लिए आराम से आ सकते हैं, और इसका आंसर कोई ये नहीं बोल सकता कि कैलकुलेशन गए वो गए, नहीं हो सकते, दिस इज अ डायरेक्ट आंसर, राइट। एंड यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, स्टडी, watch the video again, you can save the video, download the video, your wish. तो 9th स्टैंडर्ड का हर एक वीडियो आने वाला है ऐसे ही, 9 चैप्टर्स का, मैथ्स का भी और साइंस का भी, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इट्स द फाउंडेशन फॉर क्लास हायर क्लासेस, दैट इज 11th स्टैंडर्ड, right, 11th standard के लिए बहुत important 9th standard, so that doesn't mean that this chapter not is included. This chapter is for your drill of your brain. अब जाएंगे हम फोर्थ क्वेश्चन के लिए, ABCD is a trapezium, ABCD एक trapezium है, right, ABCD, right, in which AB is parallel, trapezium का प्रॉपर्टी है ये जो पैरेलल साइड्स है वो इक्वल भी होना, और ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हमको गिवन है AD is equal to BC, फिगर भी दिया है हमें, शो दैट, ध्यान से देखिए बच्चों, पहले है एंगल A is equal to एंगल B, दूसरा है एंगल C is equal to एंगल B, तीसरा है triangle ABC is congruent to triangle AB, right। अब ये हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा एक्सटेंशन करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसा एक्सटेंशन करेगा, यहाँ से यहाँ पर, और उसको E बोलेगा, मतलब ये लाइन है डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन, 2 लाइन को हम एक्सटेंड किया है,
एक लाइन को एक्सटेंड किया है सी से विच इज बीन विच इसको कैसे मैथमेटिकली बोलते हैं, देयर इज अ लाइन विच इज बीन ड्रॉन फ्रॉम सी विच इंटरसेक्ट्स द लाइन protruding from B. Okay, they both intersect at point E. This is what it is. तो ये क्वेश्चन है, ये भी एक 5 मार्क वाला क्वेश्चन ही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. सो वी विल राइट द एंगल. सपोज हमने इधर ये एंगल को 1 लिया है, ये इजी गो के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये एंगल 2 लिया है, इसको मैं 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, या इसको 5 लिया, इसको 6 लिया, ऐसा मैंने 6 एंगल को लिया है, राइट. सो यू नो दैट ये आफ्टर ड्राइंग, आफ्टर कंस्ट्रक्शन, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, राइट, उसमें वी विल ड्रॉ दैट CE जो है, CE है वो पैरेलल है AD के साथ. समझ में आ रही है, ये और ये दोनों पैरेलल बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन से, तो कंस्ट्रक्शन इसके लिए करता है. So I know very well that AE is parallel to DC, right? AE is parallel to DC. Also AB जो है, AE का है, AE है DC के साथ. वैसे ही AB है, AB और EC, right? AD और EC, AD है ये, AD है parallel to EC. ये जो ये सेम लिखा है मैं वापस, राइट. ये मुझे पता है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑफ अ पैरेललोग्राम, और ये जो है यहाँ ऊपर से, फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो AD है वो होगा इक्वल टू EC, और जो AD है वो ऑलरेडी दिया है हमें इक्वल टू BC के साथ. तो ये AD और EC बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स वो दोनों पैरेलल है तो वो इक्वल भी हो जाएगा. So we can tell opposite sides of parallelogram because we assume this entire thing as a parallelogram. मैंने बोला था आपको, ये जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो ये दिखाने के लिए कि ये पूरा पैरेललोग्राम है करके. तो हमें ये पता है, ये तो गिवन है हमें, इन दोनों से मुझे पता है AD और AD है, तो मैं कैन वी कंक्लूड दैट इम्प्लाइज EC इज इक्वल टू BC, राइट. फ्रॉम 1 and 2 मुझे ये समझ में आ रहा है. अब मैं जाएगा आगे इन ट्राइंगल, यहाँ से इधर जा रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल CBE, EC इज इक्वल टू BC. CB का है CBE, मुझे पता है EC का है EC जो है इज इक्वल टू BC. ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. समझ में आ रहा है कि इधर से मेरे को पता है, राइट. अगर इसको मैं 1 लिया है तो मैं लिखेगा फ्रॉम 1, सही है. तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये दोनों इक्वल है. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल here it is 5, here it is 3 and 4. तो मुझे पता है अगर कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो इसका ये भी एंगल भी इक्वल होगा. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा ना. तो मैं एंगल लिखा, तो आई रोट 3 इज इक्वल टू एंगल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइज. परफेक्ट. सो ये होने के बाद क्या मैं लिख सकता हूँ लीनियर पैर से एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पैर है, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 also 180 डिग्री. ओके, जो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, राइट. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और ये क्या है आपका LP लीनियर पैर. लीनियर पैर क्या है, इफ यू डोंट नो, जब ये एंगल और ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आता है. अब देखिए आप, ये एक एंगल है, एक लाइन है, उसके बीच में ये आ गया 2 और 3, तो ये क्या बोलता है कि ये एंगल और ये एंगल x प्लस वाई 180 होता है, इसको बोलता है लीनियर पैर. तो ये सब मैंने कर दिया है. अब मैंने दोनों इक्वल है तो मैं लिखेगा 1 प्लस एंगल 3, 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2. मुझे पता है एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल है, तो मैंने कट दिया. 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 क्या है आपका, DCB है, राइट. एंगल 1 इज इक्वल टू DCB. एंगल 1 आपका A है, एंगल 2 आपका B है, तो हो गया फर्स्ट वाला एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हो गया.
I hope it was fine. Right? You need to practice this question n number of times until you get it done. ये first one. अब second one prove करना है कि angle C is equal to prove angle C is equal to angle D. ये prove करना है. So मुझे पता है 2 और 3 180 डिग्री है. क्यों है? लीनियर पेयर है, पता है हमें. और एंगल 1 of 5 भी है. एंगल 1 प्लस एंगल 5. अब एंगल 1 और 5 कहाँ है? देखो ये दो, वो भी इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्स है. ट्रांसवर्सल इंटीरियर को इंटीरियर. अब दोनों 180 है तो क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2. तो मुझे पता है यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो 1 और 2 को हटा दिया. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3. एंगल 5 कितना है आपका? डी है. और एंगल 3 क्या है आपका? नो वी वेंट स्मॉल थिंग. सो हियर आई थिंक इट इज एंगल 2 प्लस. तो इधर भी मैं क्या कर रहा हूँ बताइए? इधर एलपी नहीं चाहिए मुझे. क्या हुआ? गलत स्मॉल ये हो गया. इधर ऑल्सो ट्रांसवर्सल इंटीरियर लिखने से इसका भी 2 और 6 हो जाएगा. क्योंकि ये क्या होता है, मुझे जो चाहिए वो आई नीड टू गेट. इट्स नॉट लाइक व्हाट आई हैव टू डू विद दैट. सो इट इज 6. यहाँ पर 6 है, ये 6 है, तो 6 है एंगल सी. तो समझ में आया? सो कैसा पता चला कि मैं कहीं रॉन्ग जा रहा है? बिकॉज आई वोंट गेट द डिजायर्ड आंसर. When I don't get the desired answer, I will understand that my somewhere I have spelled out. So I will recheck it. समझ में आया होगा आपको इधर तक. और अब एक लास्ट भाग है हमारा, वो भी कर देंगे. तो आई ड्रॉप दिस. जैसे कि मैं आई थिंक दैट यू विल बी writing down all this. So last part is triangle ABC कॉन्ग्रेंट दिखाना है बी ए डी के साथ. तो मुझे ए बी सी का है. ए बी सी होल्ड ऑन, देयर इज स्मॉल ए बी सी बी ए डी. ए बी सी और बी डी सी में क्या कर सकते हैं? वी नीड टू यस स्टूडेंट्स. तो ए बी डी ट्रायंगल ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे इसको? तो ये करेंगे, राइट, बाइसेक्ट करवाएंगे. तो नाउ आई कैन राइट, नाउ आई नो ए बी सी और बी ए बी. एक समझ में आ रहा है? ये एक ट्रायंगल है और बी ए बी. तो उसमें ए बी क्या है? कॉमन लेकर आए. और बी सी इज इक्वल टू ए डी. बी सी क्या है? बी सी ये और ए डी गिवन है. ये तो गिवन है. और मुझे पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. वाई 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मुझे उधर से मिला है. तो 1 इज इक्वल टू एंगल 2 या ए इज इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं. सो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए. एंड दैट्स इट. दैट्स ऑल. दिस इज हाउ you are this is how you do this questions related to the first part. First part questions are simple except the last two questions. You will get to know, dear students, how to do until just you practice. Now let us go to midpoint theorem. Now we will be studying about midpoint theorem. Midpoint theorem is very important theorem. Study those. Midpoint theorem क्या बोलता है? The line segment joining the midpoints of two sides. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel
टू द थर्ड साइड, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो मैं बोलता हूँ कि ये आपका 8वां थियरम है, 7 थियरम फर्स्ट पार्ट का है, ये 8 थियरम है। तो आपके पास ABCD एक ट्राइंगल है, याद रखो ABCD एक ट्राइंगल है, राइट। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB में एक पॉइंट है E, यहाँ पर AC में एक पॉइंट है F, ऐसा राइट। टू प्रूव, हमें टू प्रूव है EF इज पैरेलल टू BC, राइट। तो हमें इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन थ्रू C से हम एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे, इधर से प्रोट्रूडिंग करके इधर मिलता है, राइट। इट मीट्स एट अ पॉइंट D, सो from C draw a line segment जो है पैरेलल टू AB। तो यहाँ C से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो पैरेलल है AB से, AB के माध्यम से जो पैरेलल है ये, ठीक है। एंड एक्सटेंड, उसके बाद एक्सटेंड CEF टू D, तो ये पॉइंट है आपका D, याद रखो ये पॉइंट है D। सो हमें सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं क्या होगा। सो यू नो दैट we have take triangle AEF and CDF, ADF और CEF। सो मुझे पता है AEF और CDF, AEF का है, AEF देख रहा है ये ट्राइंगल, और CDF है ये ट्राइंगल। मुझे पता है AEF ए एंगल और CD ये एंगल इक्वल है, टू इक्वल है। क्योंकि देखो क्या होगा, वाई दिस इज इक्वल, बिकॉज देखिए करेक्टली देखिए बच्चों, मुझे पता है आई हैव ड्रॉन AB पैरेलल टू CD, सही है, टू CD। सो आई कैन टेल दैट AEF इज इक्वल टू CDF, यहाँ से, क्योंकि ये अल्टरनेट है, एंगल। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया। आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ आफ्टर दिस आई कैन राइट AFE इज इक्वल टू CFE, AFE ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब मुझे पता है AF इज इक्वल टू CF, ये क्यों है, मिड पॉइंट। कौन है मिड पॉइंट, F वाज अ मिड पॉइंट, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ बाय AS से रूट ट्राइंगल AEF कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDF से, और इसका CPC से मैं लिख सकता हूँ ED इज इक्वल टू DC। देखो ED का है E से D, राइट। सर ED नहीं है, EA, तो पूरा ट्राइंगल जाएगा, EA, E से A, ये वाला और DC क्या है, ये वाला, ये दोनों इक्वल, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद वी ऑल्सो नो दैट EA इज इक्वल टू EB, मुझे पता है EA इज इक्वल टू EB, ये भी पता है मुझे। तो इन दोनों से क्या होगा, क्या मैं लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज मतलब इन दोनों से EB इज इक्वल टू DC, ये EB और ये DC, ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, राइट। अभी नाउ इन EBCD क्वाड्रेटर, देखो ये EBCD देख रहा है, ये पूरा क्वाड्रेटर से इसका पैरेललोग्राम, राइट। सो वन पेयर द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो हियर वन पेयर of opposite sides are equal, so EBCD is a parallelogram। समझ में, सिंस वो पैरेललोग्राम है तो उससे मेरे को लिख सकता है कि ED is parallel to BC और EF is parallel to
तो ई बी, अभी ये पूरा ये है, तो मैं क्या मैं सकता हूँ ई डी क्या है बस, ई डी इज पैरेलल टू बी सी, और मैं लिख सकता हूँ ई एफ भी पैरेलल होगा बी सी के साथ। सही है, हैंड्स करो। यही है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। कहता क्या है कि ये दोनों इक्वल है, राइट। तो हमें दिखाना है कि इट इज ऑल्सो टू द थर्ड पॉइंट। अभी यहाँ पर थर्ड पॉइंट है ना, ये डी, ये भी से पैरेलल है, दिखाना है। समझ में आया, राइट? Yeah, I hope everyone has written, right? I'll make you understand again. अगर समझ में नहीं आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरे को बोला है कि ये जो है, इतना जो है, ये और ये पैरेलल है, राइट। अब मैं इसको कंस्ट्रक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ। ओके, थियरम क्या कहता है? थियरम ये कहता है कि a line segment joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to the third side. तो ये इससे जो ये होता है, ये थर्ड साइड से पैरेलल है। तो मैंने ये दिखाया है, टू प्रूव यू हैव टू प्रूव EF, ये जो लाइन है वो इससे पैरेलल है। मैंने पहले बताया था कि ये गिवन है, मेरा गलती है। सो ये हमें दिखाना है पैरेलल टू ये। इसके लिए मैं ये जो कंस्ट्रक्शन किया है, उसके बाद मैंने ये जो शेडेड ट्रायंगल्स लिए हैं उन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाया। क्यों कॉन्ग्रेंट दिखाया? क्योंकि मुझको ये और ये CPCD मिल गया, और ये CPCD मिल जाने से फिर मैंने क्या किया है, आई जस्ट मुझे पता है कि EA जो EA है वो EB है, EB का है, EB से भी ये मिड पॉइंट है। देखो बच्चों, ये मिड पॉइंट है, दिस मिड पॉइंट, ये इससे इक्वल है और ये इससे भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम में तो ये पूरा इससे पैरेलल है और ये छोटा भी इससे पैरेलल है। हो गया, इतना ही करना है। समझ में आया अभी क्या होना है? बस तो हमने ये इसको क्यों कॉन्ग्रेंट दिखाया? क्योंकि ये इससे इक्वल करवाना है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये इससे इक्वल है, तो ये अगर ये बाई इससे इक्वल है तो ये इससे भी इक्वल होगा, ये इससे इक्वल होगा, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। हमारा काम आसान हो गया। इतना ही मिड टर्म है, मिड पॉइंट थियरम है। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डू इट। वन लास्ट टाइम to my satisfaction I'll explain you. हमें दिखाना है ये मिड पॉइंट थियरम, ये है, राइट। सो मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, व्हाट इज मिड पॉइंट थियरम? मिड पॉइंट थियरम, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अभी देखिए हमें ये दिखाना है EF इज पैरेलल टू, ये थर्ड साइड का ये इससे पैरेलल है। तो मैं क्या करेंगे, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल में, आई कंसीडर दिस टू ट्रायंगल्स। मुझे पता है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, राइट। और मुझे ये भी पता है कि F मिड पॉइंट है, तो ये और ये भी इक्वल होगा, राइट। और मुझे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इससे, ये देखिए इससे समझा है। तो मैं ये somehow I'll make this congruent। क्यों कॉन्ग्रेंट बनाया? क्योंकि ये जो है A से E है और ये C से D है, ये दोनों इक्वल करेगा मैं CPCD से। अभी ये क्यों जरूरत है? क्योंकि E इज अ मिड पॉइंट, मुझे पता है ये और ये इक्वल होगा, तो ये और ये भी इक्वल है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ये और ये इक्वल है? अगर ये और ये इक्वल है तो ये जो है EBCDE एक पैरेललोग्राम बन गया। तो मैं भी लिख सकता हूँ ED is parallel to BC और EF is parallel to BC. That's your midpoint theorem. We can make a small short and we can put it. We try to do that. इसका और एक छोटा भाई भी है, वो भी कर देंगे। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चंस, थोड़ा और सफ़र करो। So the next theorem that stays is, अब next theorem सुनिए, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to, oh sorry, ये बोला गया है कि the line drawn through the midpoints of one side of a triangle is parallel to the another side, it bisects the third side, it bisects the third side. अब ये भी छोटा है, ये आपका लास्ट थियरम है, राइट। दो थियरम के बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसका भी एक ट्राइंगल होगा, दिया है ट्राइंगल ABC। अभी थोड़ा फास्ट गोइंग करेंगे हम, जिसका मिड पॉइंट है यहाँ पर E है और यहाँ का F है,
राइट। यहाँ से मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ जैसे कि वैसे तो पहले था वैसे ही करेगा मैं, राइट। सो ये सब कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन से मैं ये बताता हूँ कि थ्रू कंस्ट्रक्शन में बोल रहा हूँ सी डी इज पैरेलल टू ए बी, राइट। सो नाउ सॉल्यूशन में ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी, ई बी सी डी, जहाँ पर ई डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ई बी इज पैरेलल टू सी डी। ये कैसा है, बाय कंस्ट्रक्शन से होता है ये बच्चों, ये बाय कंस्ट्रक्शन से होता है। और ये क्योंकि आज ई एफ इज पैरेलल टू बी सी जो है गिवन है बोथ पेयर्स और, तो इन दोनों से नाउ वी कैन से दैट EBCD is a parallelogram, राइट। अब ये एक पैरेललोग्राम है तो मैं लिख सकता हूँ इसमें से EB is equal to BC, EB also equal to EA and EA is also equal to BC। तो ये क्यों है, ये क्यों है क्योंकि E मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है उसके लिए। ओके, नाउ that's now what we will do is we will take two triangles. In triangles AEF and triangle CDF, right? I can tell AFE is equal to CFE or AEF is equal to CBF। अब देखिए ना वाले एक्सप्लेन यू, AEF है, AEF ये ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं इसमें, और CDF है ये ट्रायंगल ले रहा हूँ इसमें। तो इसमें AFE इज इक्वल टू CFD, ये तो क्या डायरेक्टली क्या बोलेंगे हम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ही, राइट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। फिर ये नेक्स्ट वन जो है ये कैसा आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स है, मैंने बताया था पिछले वाला थियरम में मैंने बताया था जब ऐसा होता है, राइट, वी टेक द ट्रांसवर्स ऑफ टू एंड वी राइट देम। सो AEF ये जो एंगल है, और नॉट ट्रांसवर्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो समझ में आया, इन दोनों मैंने ऐसा किया है। तो लास्ट में मैं लिखेगा AE इज इक्वल टू CD, AE इज इक्वल टू CD यहाँ से, राइट। तो मैं दोनों ट्रायंगल को AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू CDF ये लिख सकता हूँ, और CPCD में AF इज इक्वल टू CF भी लिख सकता हूँ। तो इसमें से मैं ये बोल सकता हूँ कि F इज अ मिड पॉइंट, उतना ही। अब देखिए मैं क्या किया है स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज with the same thing, same construction, right? Given, I will repeat the theorem for you. A line is drawn through midpoint of one side. Take one side से एक line is drawn. So you have to show that the other third side is also a midpoint. तो उसके लिए हमें एक quadrilateral ले EBCD का, ये quadrilateral है, right? मुझे पता है ED जो है इस पैरेलल टू BC, ये पैरेलल है इससे, और EB जो है ये पैरेलल है इससे, राइट। ये कैसा आ गया as EF जो है इस पैरेलल टू BC। तो ये अगर ये पैरेलल है इससे तो ये पूरा पैरेलल होगा इससे। फिर अगर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है तब मैंने बोला कंस्ट्रक्शन में है तो ये और ये भी इक्वल है, लिख दिया मैंने, ओके। अभी नेक्स्ट वी कैन से दैट ये जो है वो पूरा एक पैरेललोग्राम है, ये बोल सकते हैं, राइट। After that, EB is equal to DC. What is EB? EB is equal to DC. क्योंकि opposite sides of parallelogram हो गया, और ये क्योंकि E एक मिड पॉइंट है, नहीं ले सकते तो this is equal to this, तो ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल, तो ये भी और ये इक्वल होगा, तो ये है और DC इक्वल होगा। पिछले थियरम का रिवर्स है ये थियरम, समझ में आया यहाँ तक क्या हुआ। अभी आई चूज दिस टू ट्रायंगल्स वापस, तो
पिछले में ये करने के बाद मैंने ये सीपीसी लिया था, अभी ये इससे हम ये दोनों ट्रायंगल करते हैं, राइट। और मैंने ये फर्स्ट वन आपको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, सेकंड है अल्टरनेट एंगल्स, ये पता है आपको कैसे है। और ये ये है आपका कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने इसको 1 लिया, फ्रॉम 1 लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 1, ओके। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो मैं इसका सीपीसीडी ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि F इज अ मिड पॉइंट, दैट्स इट। I hope you understood the first 2 theorems, right? First 2 theorems are well known. Now we will go to the next one. No, there is no next theorem. Now we will go to some of the question answers. So I believe that you have well known about these things. So now I want you to understand the question. What's the first question? First, all NCERT questions, but please make sure that you know this and all very well. Question number क्या है हमारा ये? 5th question. 5th, 6th, 7th, 8th इतना क्वेश्चन करना है। So ABCD is a quadrilateral, तो ये quadrilateral लिया है मैंने, A B C D लिया है, और उसका ABC is a quadrilateral where PQ आ रहा था मिड पॉइंट्स। तो यहाँ पर ऑफ AB का मिड पॉइंट है P, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है R और यहाँ पर है S। इन दो सबको मैंने ज्वाइन करवा दिया, समझ में आया, इन सबको मैंने ज्वाइन किया है। After that they have asked you, diagonal AC है, AC diagonal है, so show that easy है। First one, SR is parallel to AC, second one, SR is half of AC। ये दोनों करना, very important question है ये, right, exam के लिए। So we know that ABCD is a quadrilateral where PQ और RS are the midpoints of ये question में जो है, you know what it is given, that is this is show that। तो इसका solution कैसे शुरू करेगा, हमें लगेगा इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, देखिए ADC दिख रहा है, ये फर्स्ट हाफ वो जो ऊपर है वो ट्रायंगल में I can write S and R are the midpoint, सही है, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ SR is parallel to AC according to the midpoint, और ये भी लिख सकता हूँ कि SR is half of AC। दोनों का रीजन तो सेम है, मिड पॉइंट हियर, थ्योरम, समझ में आया। दैट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ 2 मिड पॉइंट्स इज इवन पैरेलल टू द थर्ड वन, राइट। द थर्ड वन इज नॉट कंसिडर्ड, दैट इज द नेक्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन हाउ टू डू इट, राइट। नाउ सिमिलरली सेकेंड वन में कैसा होगा, सेकेंड वन में कैसा होगा, इसमें हमने ऐसा किया है ना, भी हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, तो ऊपर कवर करो ABC, इसमें हमें पता है P and Q are the mid points, सही है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ PQ is parallel to AC, तो मैं लिख सकता हूँ PQ is half of AC। इसको ले इक्वेशन नंबर 1, इसको ले इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को इक्वेट करो, राइट। नो नो नो, ये नहीं है, पहले क्या दिखाना है, ये एक, और दूसरा दिखाना है, सॉरी टू प्रूव है PQ is equal to SR। तो आई विल कंपेयर 1 and 2, 1 and 2 कंपेयर 1 and 2, हम लिख सकते हैं PQ is equal to SR। कोई दिक्कत है, इजी है, राइट। दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। आई अगेन टेल यू कि पहले ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल है, इसका PQ RS आर द मिड पॉइंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, राइट, रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। सो हमने क्या किया, पहले इस हिसाब से S और R दिया है, S and R the midpoints, so S and R is parallel to this and even half SR is half of this। वैसे ही दूसरा भाग में this is parallel to this half of this, कंपेयर किया, we got PQ is equal to SR। PQ is equal to SR मिला है, तो we can write PQRS is a parallelogram also, right। ये भी लिख सकते हैं, एक्चुअली ये थर्ड क्वेश्चन था आपका,
PQRS is a parallelogram. ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, सही है ना? Opposite sides are equal and parallel, they are parallelogram. So that's all the question is. I hope you understood the question. Next question. We'll go to the sixth question. आप देखेंगे sixth question important है यानी 6, 7, 8 बस और 3 question की टाइम रहेगा. Okay, we'll do the next question. जो आपका है 6th question. ये भी इम्पोर्टेंट है. मिड पॉइंट में तो जो कर रहा है पूरा इम्पोर्टेंट ही है सब में. सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ये भी थोड़ा not that complicated, but the concept is very well to be known. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium, right? ABCD is a trapezium in which AB parallel है BC में और BD is a diagonal. BD है diagonal, right? BD एक diagonal है यहाँ से यहाँ पे, सही है? तो ऐसा एक लाइन है, BD is a diagonal of and E is the midpoint on AD. E यहाँ पर एक midpoint है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए आप. Is a midpoint of AD and line is drawn through E parallel to AB. तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो पैरेलल है, तो मैं इधर पॉइंट लेता हूँ F करके. सो आई कैन राइट दैट EF इज पैरेलल टू AB. AB गिवन ही है, ये सब कुछ गिवन में आ रहा है आपको, राइट? शो दैट F इज अ मिड पॉइंट. अभी हमें दिखाना है शो दैट F इज अ मिड पॉइंट. क्यों उन्होंने बोला E इज अ मिड पॉइंट है, हमें दिखाना है F इज अ मिड पॉइंट, राइट? F इज अ मिड पॉइंट. F इज अ मिड पॉइंट का मतलब क्या है? आपको आएगा CF is equal to BF. सही, ये दिखाना है. तो सोल्यूशन शुरू करेंगे. बहुत इजी है, इसमें खत्म हो जाएगा. EF हम करेंगे कि EF is intersecting. We'll write EF intersects DB at G. तो यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे G करके. अब इससे क्या यूज होगा वो हम आगे लिखेंगे. इन ट्राइंगल हम लेंगे AD, इन ट्राइंगल ABD. देखिए ये ट्राइंगल पूरा ले रहा हूँ मैं, ठीक है? इसमें मुझे पता है E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, राइट? सो EG इज पैरेलल टू AB. सही है? EG होगा पैरेलल टू AB, सही है ना? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ब्रैकेट में लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम. हो गया. सो नाउ इसी थ्योरम से कन्वर्स में हमें मिलेगा कि G इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट. यही कहता है ना मिड पॉइंट थ्योरम, राइट? दिस इज अ मिड पॉइंट, इवन दिस इज अ मिड पॉइंट, राइट? तो G विल बी द मिड पॉइंट ऑन DB. सही है, राइट? सो नाउ अगेन गिवन that EF is parallel to AB and again AB is parallel to C. EF जो है is parallel to AB दिया है. अभी और पता है मुझे कि AB is parallel to DC. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि आपका EF is parallel to C. EF is parallel to C. ये भी लिख दिया, अभी नया चीज़ है. अब इन ट्राइंगल BCD, अब देखो ये अनशेडेड ट्राइंगल है, राइट? G इज अ मिड पॉइंट, G इज मिड पॉइंट. तो क्या मैं लिख सकता हूँ GF इज पैरेलल टू C. सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. बस हो गया बाय मिड पॉइंट theorem. That is a line drawn to the midpoint of one side of a triangle. Not midpoint, converse midpoint, right? It's a converse midpoint. लिख सकते हैं converse midpoint, right? समझ में आया? That is the second question. Two more questions to go. I hope it was very satisfying.
मैं वापस बोलूँ क्या हो गया इसमें, एक ट्रापेजियम है, इसमें ये मिड पॉइंट दिया है, ये सब दिया है, ये एक लाइन ड्रॉ किया है, ये इससे पैरेलल है जो भी है, तो मैंने ये जो शेडेड ट्रायंगल लिया है ये इससे पैरेलल है करके बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इज अ मिड पॉइंट। जब वो बोलता हूँ मैं तो कन्वर्स से ये जी भी मिड पॉइंट बन जाएगा। उसी रूल में अप्लाई कर रहा हूँ इस ट्रायंगल में और मुझे आंसर आ जाएगा। समझ में आया? दिस इज हाउ आई टैकल द क्वेश्चंस। To the next question. Two more questions. Next question is your 7th question, students. ABC is a rectangle. एक rectangle दिया है ABCD. ABC is a rectangle. ABCD is a rectangle in which P, Q, R, S are the points. P is a point on AB. P, Q, R, S are the points. We'll join those points and we'll draw the diagonal also. Show that the quadrilateral PQRS, जो अंदर जो PQRS है, show that PQRS is rhombus. ये दिखा रहा है कि ये rhombus है, right? So I will now क्या करेगा, मैं diagonal दिए बोला नहीं है उन्होंने, I will join AC, मैं जो AC वो join करता हूँ, ठीक है? जो AC वो join करेगा मैं। So अभी solution के बाद आने से rhombus क्या है? Rhombus is a parallelogram of quadrilateral where all the sides are equal. Rhombus is a quadrilateral where all the sides are equal. So we have to show that all the sides PQ RP ये सब कुछ equal है. PQ is equal to RQ is equal to RS is equal to SQ. ये पूरा दिखा रहे हैं हमें. उसमें there is no much more complication in triangle ABC में जब बात करते हैं ABC का ABC ये छोड़ दो तो क्या we know that Q is a midpoint and P and Q are the midpoints. So can I write PQ is parallel to AC and PQ is half of AC by midpoint from midpoint theorem. ये लिख सकता हूँ मैं और इसको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 के रूप में, राइट? वैसे ही इन ट्राइंगल दूसरा ADC S and R are the midpoint. So can I write SR is parallel to AC and SR is half of AC, again midpoint theorem और इक्वेशन नंबर 2 लिया है मैंने इसको, ठीक है? इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2 लिया है। अब मैं बात करेगा फ्रॉम 1 and 2 AC और A, तो क्या मैं लिख सकता हूँ PQ is parallel to AC, PQ is parallel to SR भी लिख सकता हूँ मैं, सही है? कोई बात नहीं, फर्स्ट एंड 2 से, राइट? PQ is parallel to SR and PQ also is equal to SR, ओके? ये दोनों लिख सकता हूँ मैं। So in PQRS, right? We can tell that now your PQRS is a parallelogram. अब ऐसा हो गया। अभी you know where this PQ is equal to SR, PQ is equal to SR, तो parallelogram बन गया। अब मैं क्या करके इधर लिखता हूँ मैं, I hope it is visible over here. अब मैं करेगा इन ट्राइंगल APS, देखो ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, APS एंड ट्राइंगल BPQ, ये दोनों ट्राइंगल लेने से मुझे पता है AP is equal to BPQ
क्योंकि P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, राइट। अब मैं लिख सकता हूँ PAS, ये जो एंगल है इज इक्वल टू PBQ, राइट। Why it is equal? Because all angles of the rectangle, ये rectangle है, right, 90 डिग्री है, because it is a rectangle. और उसके बाद I can write AS is equal to BQ, यहाँ पर B है, right, क्योंकि मुझे पता है कि AD is equal to BC, AD is equal to BC, half of AD is equal to half of BC करने से मुझे ये मिलेगा, समझ में आ रहा है बच्चों? Half you should do. So I can tell a triangle APS is congruent to triangle BPQ. So PS is equal to BQ. So I can tell that PS is equal to RQ, PS is equal to RQ, right? And PQ is equal to RSQ, opposite sides of पैरेललोग्राम। तो मुझे ये अभी मैं बोल सकता कि PQ is equal to RS is equal to PS is equal to RQ. So it's a rhombus, right? अभी बोल सकता कि it's a rhombus. So I repeat again what is happening over here. दिया गया है ABCD का रेक्टेंगल का दिया है, तो उसका इस्तेमाल हमने इधर किया है 90 डिग्री का रूप में। हमें दिखाना है कि इसका अंदर जो भी आ रहा है इट्स अ rhombus. So you join AC, right? Join AC. So we take the triangle in triangle ABC. तो पहला पार्ट देख रहा हूँ मैं, ये पूरा ले रहा हूँ मैं, ये यहाँ ये दोनों मिड पॉइंट से, तो I can write this is parallel to this and this is half of this. तो मैं लिख दिया इक्वेशन 1 बोल दिया। अब मैं ये जो सेकंड पार्ट है ऊपर वाला ADC में S और R are the midpoints, तो मैंने लिख दिया SR is parallel to AC and is half of AC, इक्वेशन नंबर 2। और दोनों कंपेयर किया तो मुझे आएगा SR is equal to PQ and SR is parallel to PQ। तो इससे मुझे पता लगा कि जो अंदर वाला है हमारा जो PQ आ रहा है that is a parallelogram। तो यहाँ पे दिखाना है it's a rhombus, not a parallelogram। So जो the triangles APS और BPQ में ले रहा हूँ, तो मुझे पता है ये 90 होगा, ये 90 होगा, पता है, और ये मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल होगा, वो भी लिख दिया मैंने, 90 लिख दिया। अब मैं बोला कि ये जो है और ये जो है वो इक्वल, कि ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा कि हाफ। तो उसका रीज़न मैंने तो लिखा है, उसका रीज़न मैं बोला है कि इसका हाफ है ये, इसका हाफ है ये, तो बाई क्या है, बाई नहीं लिखा है, ये साइड एंगल साइड बाई SAS रूल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने लिख दिया PS इज इक्वल टू PQ। PS का है, PS इज इक्वल टू PQ CPCT। फिर मुझे पता है PS इज इक्वल टू PQ, लेकिन मुझे पता है PS इज इक्वल टू RQ, राइट, और PQ इज इक्वल टू RS, क्योंकि पैरेललोग्राम पहले हमने बता दिया है, उसका मतलब सारा साइड्स इक्वल है और वो एक पैरेललोग्राम है। आई होप इट इज नाइस। सो इफ यू आर सीइंग दिस वन एंड इफ यू फील इट नाइस, subscribe this. So we are ending this chapter by the last question. पहले मैं सोचा कि हर एक टॉपिक वाइज, मे बी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट अलग वीडियो बनाएंगे, राइट, बट देन आई थॉट यू स्टडी इन वन स्ट्रेच, नो प्रॉब्लम इन दैट। So next question, the last question for you. See dear students, in a parallelogram ABCD, एक पैरेललोग्राम है, सोचो ABCD है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, where E and F are the midpoints on the side AB, AB में है E और F है DC में। E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively, so that line segment AF trisects, line segment AF and EC trisects a diagonal BD। तो BD एक diagonal है, तो उसमें आपको चाहिए AF होगा
और ये सी ई होगा। तो आपको समझ में आया कैसे डायग्राम होगा। तो इधर में लिखेगा पी और इधर में लिखेगा ओ एक बार में, राइट। अब मैं क्या करेगा, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आई एक्सप्लेन टू द क्वेश्चन, टू प्रूव ट्राइसेक्ट, इसका मतलब क्या है, बी ओ इज इक्वल टू पी ओ इज इक्वल टू डी पी। सो हम सोल्यूशन शुरू करेंगे, बहुत ईजी है। तो हमें ये बोला है कि ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। तो मुझे पता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए ई तो पैरेलल होगा सी एफ से, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो मतलब ए ई पैरेलल होगा सी एफ से। सो क्यों, बिकॉज पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम इज पैरेलल। अब मुझे पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, इक्वल भी है, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी सी डी होगा ए ई इज इक्वल टू सी एफ। सही है। तो इधर तक हो गया, ए ई इज इक्वल टू सी एफ, ए ई इज इक्वल टू सी एफ। अब मैं बोलेगा इन ट्राइंगल, नो इन ट्राइंगल नहीं, ए ई सी एफ, ए ई सी एफ। देखिए ए ई सी एफ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बातचीत करेंगे उसका। तो इन दैट वी नो दैट अभी यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, तो ए ई इज इक्वल टू सी एफ एंड ए ई इज पैरेलल टू सी एफ, सो ए सी ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया आपको कि ये कैसा हो गया। अब ये क्यों हो गया, उसके बाद क्या करेंगे आप देखेंगे, वी नो AF is parallel to CE, that is opposite sides of the parallelogram are equal, AF का है, ये AF, तो ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये भी फ्रॉम दिस, इससे हमको ये पता होगा कि ये और ये भी इक्वल होगा। सही है, those both are also equal, so now what I'll do is PF is parallel to CQ, right, and AP is parallel to PQ. Where is CF? Sorry, PF. PF है यहाँ पर, PF भी पैरेलल होगा CO से, वो है CO से, और AP भी पैरेलल होगा EO से, बिकॉज पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये और इसका रीजन सब सेम ही है, दोनों का रीजन सेम है। समझ में आया। नाउ अब हम दो पार्ट को लेंगे, दो विभाग करेंगे। सो इन ट्राइंगल हम लेंगे डी ओ सी, है डी ओ सी, डी ओ सी, देख रहा है, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखिए आप करेक्टली, ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी, ये वाला ट्राइंगल भी, राइट। अब ये दोनों ट्राइंगल है, क्या कर सकता है इसमें, मतलब मुझे एफ इज अ मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एफ इज पैरेलल टू सी क्यू, इधर लिख सकता हूँ ए पी इज पैरेलल टू पी क्यू, मिड पॉइंट थियरम से, मिड पॉइंट थियरम से, इसको भी सेम है, सेम टू सेम है, दोनों का सेम मिड पॉइंट थियरम है, राइट। अभी इसमें से मैं लिख सकता हूँ कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ओ, सो PO is equal to, या PO CO PO is equal to DP, और यहाँ भी ये कन्वर्स मिड पॉइंट से आता है, मिड पॉइंट कन्वर्स मिड पॉइंट से ये वाला बात आता है। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, इसमें से Q इज अ मिड पॉइंट हो सकता है, Q नहीं सॉरी, O इज अ मिड पॉइंट, तो क्या आएगा, तो PO इज इक्वल टू OB, तो इसको मिलेगा 1 इक्वेशन, इसको मिलेगा 2 इक्वेशन। सही है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं लिख सकता हूँ, DP इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू BO एंड हेंस प्रूफ, बस। नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में दिया ये पैरेललोग्राम है जिसका दो मिड पॉइंट्स है दो साइड में, हमें दिखा ट्राइसेक्शन, तो ट्राइसेक्शन हुआ ये याद रखो, 3 भागों से बांटा गया है, 1 2 3, 1 2 3। अब क्या करोगे आप,
ये पैरेललोग्राम है तो इसका ये दोनों पैरेलल, ये और ये पैरेलल है, तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा। अगर ये पूरा पैरेलल है, इफ दिस AB is parallel to CD, then the part of that is AE is parallel to FC। देखो क्लियर। अब मुझे पता है कि AB पैरेलल भी है और इक्वल भी है ना, तो इक्वल करने से हाफ किया वापस AE आ जाएगी। तो अभी इसमें ये देख रहा है अंदर का AEFC में, ये इससे पैरेलल भी है और ये इससे इक्वल भी है, तो क्या हो गया AECF पैरेललोग्राम बन गया। अब उसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि AF, ये जो AF है और EC है, वो दो इक्वल है, तो उसका भी जैसा आपने बहुत ऐसा पार्ट है, तो इसका पार्ट है दिस वन, जो FP और ये भी पैरेलल है, और FP और CO पैरेलल है, और AP और EO भी पैरेलल है। पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिख दो, पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम, समझ में आया? ये दोनों पैरेलल है तो इसका छोटा भी पैरेलल हो जाएगा। तो अभी हमने दो ट्रायंगल लिया, एक है ये वाला DOC और एक है ABP। F is a midpoint, E is a midpoint, F is a midpoint and E is a midpoint, right? So पहले वाला में F is a midpoint है, तो क्या है PF is equal to CO, midpoint थ्योरम से, और इसमें E midpoint है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ AP is parallel to EO, इसमें ये पैरेलल है इससे, समझ में आया? अब इसको उल्टा कन्वर्स बीपीटी से कन्वर्स मिडपॉइंट से मैं बोलेगा P भी, इसका देखो ये इसका है, ये F था तो मैं P भी मिडपॉइंट है बोलेगा, और इसका O भी मिडपॉइंट है बोलेगा, राइट? अब ये दोनों से जब इक्वेट करेगा मेरे को मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। Quadrilateral was a big fat chapter. I hope you understood how to solve the questions. You need to see it very clearly, pause and see it so that you understand. Some questions which is very complicated, I have written it, and then I have later shown you how to know that, right? मेरा बात सुनो, you should keep on practicing, man, keep on practicing, right? Thank you. It was really nice teaching quadrilaterals. See you soon. Have a nice day. Thank you.